अस्सलाम वालेकुम जी। जी। प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज नंबर 32 एएस के डेवलपमेंट की तरफ से खुरम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज का हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था, उसका 32 वेबिनार है। और हम एवरेजली हर एक महीने में एक वेबिनार करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नाउ ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं, और उससे भी ज्यादा बहुत ही लर्नेड स्पीकर्स के साथ हम हाजिर हुए हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नाम एक है, सुन के अच्छा लगता है। कुछ अरसे से हमने, आज से मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल से इसका नाम बहुत ज्यादा सुनना शुरू हुआ। पहले पता क्रेडिट कार्ड्स के हवाले से, फिर पॉलिटिकल कैंपेन्स के हवाले से फेसबुक एआई आया, और हमें पता चला जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इट्स नॉट ओनली एडिशन इन अवर लाइफ, रादर इट्स ऑल्सो एडिशन इन अवर रिज्यूमे। जब हम प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, नॉलेज ऑफ एआई एक बहुत की रोल प्ले करता है। क्यों? नए, इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू नॉर्मल। आप एआई के अंदर कुछ ना कुछ जान, और एआई इज नॉट चैट जीपीटी, एआई का स्कोप बहुत बड़ा है। आज हम दो में लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ हैं, और जो रिसोर्स पर्सन है अरशद आकिफ, मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बाद हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, आप लोगों को स्पीकर्स की तरफ लेके चलेंगे, ताकि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप इनकी उनके जबानी सुने। पहले हमारे स्पीकर है मिस्टर अम्मार जाफरी, फॉर्मर एडिशनल डीजीएफआईए एंड फाउंडर ऑफ डिजिटल पाकिस्तान। Mr. Ammar Jafri is a veteran professional with a remarkable track record in information technology and cybersecurity. As the DG of the Center of Information Technology, he has been at the forefront of the ICTs for Development initiative, which led to the inception of eVillage in 2009, evolving into ePakistan with partner organizations across half of Pakistan. With over 13 years of experience in this particular role, Mr. Ammar has spearheaded numerous CSR initiatives showcasing his commitment to social responsibility. Mr. Mars, most welcome to ASK webinar series. सेकंड हमारे जो स्पीकर हैं आज के, वो हैं सैयद साकिब रजा रिजवी साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर, कस्ट यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सैयद साकिब रजा रिजवी is an assistant professor at the Department of Computer Science, Capital University, Islamabad, with a PhD in computer science from the National College of Business Administration and Economics, Lahore, and a master's degree from University of Lahore. He brings over 11 years of teaching experience and 1 year of industry experience to his role. Syed, Syed Saqib has a strong background in artificial intelligence, pattern recognition, machine learning, digital image and test processing. He has published extensively in international journals and conferences, demonstrating his expertise in these areas. Sayed's career highlights including serving as the head of Department of Computer Science at Sharif College of Engineering and Technology, Lahore, where he also worked as an assistant professor. He has supervised several research projects and has a keen interest in promoting research and development in the field of computer science. With a passion for learning and a commitment to excellence, Sayed is dedicated to advancing the field of computer science and preparing the next generation of the profession for success. और आज के रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जो हैं, जो एएसके जिनका ब्रेन चाइल्ड है, Arshad Mahmood Akif. Arshad Mahmood Akif is a trainer, entrepreneur, HRM expert, and CEO of ASK Development. Mr. Akif is an HRD professional consultant and entrepreneur with over almost 30 years of experience in corporate and development sectors in the field of human resource management and leadership, HR sourcing, youth development, and employment and soft skills. Mr. Akif is a member of ISO 260 in 2 international working groups on recruitment and diversity and inclusion, also member of the National Mirror Committee of PCQCA, Pakistan on HRM standards development. ये हो गई जी इंट्रोडक्शन हमारे स्पीकर्स का, लर्नेड स्पीकर्स का। और अब हम अमार जाफरी साहब, जो हमारे पहले स्पीकर हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज एक्चुअली दिस, और किस तरह ये हमारी लाइफ में और हमारे प्रोफेशनल करियर के हिसाब से हमारी जिंदगी का प्रोफेशनल का किस तरह हिस्सा है। प्लीज, आज हमारी प्रोफेशनल सीरीज का वेबिनार है, और हम लिटरली आपसे सुनना चाहेंगे। अब हम आपकी ओवर टू यू। Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, the most merciful. Firstly, I would like to thank Akif and his entire team for inviting me this in webinar now. I wish I had been in Pakistan. So right now I'm sitting in Shenzhen, a very entertaining and rewarding city in China. I just reached here 2 hours before, and I'm well settled here. So the topic today is AI. And I think, to my understanding, all of you listening to me, they want to use AI in their own fashions. So I'll start with discussion that why AI is important for everyone. Why AI is important for everyone. So AI, to my understanding, is like a fuel.
like electricity, like water now. Why? Because it is encompassing every domain of what should I call activity human beings are doing. It was designed and conceived with the understanding that human mind, how human mind works, AI should work on that, like that. For example, when a child sees a glass, he mother tells it's a glass. Now, this word glass is goes into his memory, right? And the image of glass is there. It's called machine learning, right? So, like a child learns the glass, next time he or she tells the mother glass, right? So, on the same analogy, now machines are being trained to identify things, right? But the important part here is that it all depends on data. Interestingly, we all in Pakistan are talking about data, but we are not talking about big data, right? So now the discussion starts that why a human resource person should understand AI, why an inventory manager person should understand AI, why a common man running a IT company should understand AI. He or she will just say, I don't need AI. But the problem is that now AI is becoming the basic ingredient of a business. Let me repeat again, basic ingredient of a business. Why? Because all the decisions which human beings used to take about their businesses are now being taken by the machines. This may sound very scaring for you that how machines can take their decisions. Now, machines are taking decisions based on data. And once we have a big data, then we can make some data sets which are applied to that particular data. And based on the responses, then the machine make decisions. Let me give you a real life example. For example, I will talk about, I'll just talk about 5 minutes, then I'd like to have questions. And I will request the moderator to please repeat the question, whatever the written in the text, and I will respond to that. I am very thankful to Akif to giving me the opportunity. Although I had sent some presentation also, but I always prefer to be very candid and very informal, right? So the point is, for example, let's take a very difficult example of health. How health we are using AI. Previously, there was a reactive solutions. For example, you go to a doctor, I have a pain in the chest, then the doctor have some medical vitals, and then based on their medical vitals, the doctor decide about the medicines. But in this case, if you have a data of let's say 10 million people about the same type of pain, then immediately machine can tell you that what has gone wrong with you. Now, the preparation of these data sets. Now we can talk lot about Chat GPT and generative AI and all these things. But I won't go into complications today. I will try to keep it as simple as possible because, to my understanding, different levels of audience are listening to me now. So, based on the data, you can make decision about the health, but it would be a proactive. For example, now your medical vitals can tell you that after 3 years you'll have a heart attack unless you do not do this. No, just imagine for a minute. For example, if a robot is sitting in Blue Area, Islamabad, and next to it, a professional doctor is sitting, but professional doctor is asking you to go for 10 medical vitals and then go to blah, blah, blah labs and then come to then I will decide. At the same time, this robot, which is not a human being, it's a machine, and it is there. It is there globally, right? The robot tells you that you have this problem and you can fix this problem based on this solution. So where you'll go. Second example, real life example, I would like to go in the area of cybersecurity, which is actually my domain. And thank you for the introduction you have given to the audience. There was an era of reactive cybersecurity. You have a cyber attack, then you analyze it, you have the forensics, you go to FIA, you go to National Cert, you go to PTA, and you waste a lot of your time. Then you come to the conclusion that this attack has occurred from this IP address and it has been
having social engineering on you, blah, 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 right? But now it's the era of proactive cybersecurity. What is proactive cybersecurity? Your SIEM, SOR, CERT, whatever you apply, it will tell you, the data will tell you that after 3 days you'll have this attack from this particular IP address. Is it not something beneficial for you? But to do all these things, you have to go through a process. Like we had initially, we had number of what do you call it, business processes. No, every company, whatever company you're running right now, should have a business process taking the benefits of AI into the business process so that you can earn more money. I like to stop here. I like to stop here, and I will request the panelists, the moderators, anybody can ask the question. Over to you. The question. श्योर सर, थैंक यू सो मच। सैयद साकिब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आप जी गाइड करें अपने उसमें। जरिए बात है, आप एकेडमिक इंडस्ट्री, एकेडमिक एक्सपीरियंस दोनों मिक्स हैं, स्टूडेंट्स आपका इंटरेक्शन रहता है, बहुत सारे हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो प्लीज इन योर वर्ड्स व्हाट इज इट? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसको हम एक डेफिनेशन में नहीं समा सकती ये एक फील्ड, जितनी ये बड़ी डोमेन है और जितनी इसकी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन मैं एक सबसे पहले इसको डिफाइन करने से स्टार्ट करूंगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह को इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है, एक ऐसी कंप्यूटर साइंसेज की एक ऐसी यूनिक डोमेन है जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं मशीन्स को, कंप्यूटर सिस्टम्स को डिजाइन इस तरह करने में कि कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो बिहेव करें, थिंक करें, लर्न करें, एक्ट करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जैसे कि एक रियल लाइफ ह्यूमन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और जो प्रॉब्लम्स करंटली या ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से सॉल्व नहीं की जा सकती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जिनको ट्रेडिशनल कोडिंग या प्रोग्रामिंग से सॉल्व ना किया जा सके। जैसे कि जाफरी साहब ने भी बताया, लाइक साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने एक फेस रिकग्निशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनानी है जो कि हमारे फेसेस को रिकग्नाइज करे, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल to code our faces. It is not possible to write a program which detect your or which या जिसको हम कहें which identify your face. लेकिन with the help of artificial intelligence, with the help of sub domains of artificial learning, all these things are now possible. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का एक वाइटल पार्ट बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत उसी वक्त से ही हो गई थी जब फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बने थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटिंग हम एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। एलन ट्यूरिंग को डिजिटल कंप्यूटर्स का फादर कहा जाता है, और एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहले ये पॉइंट पेश किया था। आई थिंक इन समथिंग इन बिटवीन 1950 उसने अपने रिसर्च पेपर में उसने ये बात की कि क्या कंप्यूटर्स, क्या मशीन थिंक कर सकती हैं। तो हम अभी तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि वाकई क्या मशीन थिंक कर सकती हैं। लेकिन जो मॉडर्न हमारे सामने इस टाइम, जिस एरा में हम जिंदा हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी मशीन ऐसी हैं जो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर चुकी हैं और जो इंटेलिजेंट बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और आज करंटली हम जिस एरा में रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहने लगा हूँ, शायद आप लोग, बाकी लोग मेरे साथ एग्री ना करें, उनको इस बात का हक बनता है कि तमाम फील्ड्स, तमाम लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये तमाम फील्ड्स एप्लीकेशन एरिया बन जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब्जेक्ट, एक फील्ड बन के उभरेगा, और बाकी सब सब्जेक्ट्स, बाकी सब डोमेन्स, यहाँ तक के फिलोसफी, मैथमेटिक्स, अब आप म्यूजिक, ये सब इसकी एक एप्लीकेशन एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इसकी एप्लीकेशंस बन जाएंगी। तो आजकल के एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना, समझना, अपनी फील्ड से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत वास्ट फील्ड है। प्रोग्रामर्स इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिजाइनर्स इसको अपने तरीके से। लेकिन आप जिस फील्ड में हो, आप ह्यूमन रिसोर्स से आपका ताल्लुक है, आप अकाउंट्स डोमेन से आपका ताल्लुक है, आप एक एनिमेशन डिजाइनर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बूस्ट कर रही है। न्यू
न्यू नई बुलंदियां छूने में हमें मदद दे रही है। वो प्रॉब्लम्स आज ह्यूमन सॉल्व करें जिनको सॉल्व करने के बारे में शायद आज से कुछ साल पहले तक उन्होंने सोचा भी नहीं था। शायद हम ये आज से कुछ अरसे पहले तक ये नहीं सोच सकते थे कि एक 10 years ओल्ड भी एक वेबसाइट बना सकता है, एक वेबसाइट लॉन्च कर सकता है, एक प्रोग्रामर बन सकता है, अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकता है। लेकिन आज ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। और एक चीज मैं छोटी सी आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारे मिथ हैं लोगों के माइंड में, क्योंकि आपने प्रोफेशनल करियर की बात की। लोगों को ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, हमें खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऐसी हरगिज बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को और ज्यादा मुस्तहकम और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, हमें और ज्यादा अपने करियर में ग्रोथ देने के लिए, हमें और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए हमें सपोर्ट कर रही है, डिफरेंट डोमेन्स को, डिफरेंट फील्ड्स को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वजह से नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। लोगों को लगता है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर लाइक क्रिएटिंग अ रोबोट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री का सिर्फ 5% पार्ट रोबोटिक्स से रिलेटेड है। 95% ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मकसद है वो एक एफिशिएंट स्मार्ट एल्गोरिदम्स बनाना, स्मार्ट सिस्टम्स डिजाइन करना है कि जो हमारी लाइफ को मोर फिजिबल बना सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरशद आकिब की तरफ जाते हैं। वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी खासतौर 3 से 4 दिन पहले मेटा ने एआई इंट्रोड्यूस करवाया और लोग गपशप भी लगा रहे हैं मेटा से। तो खानों की रेसिपीज पूछ रहे हैं, चीजें पूछ रहे हैं। और मेटा, और मैंने आज इसको टेस्ट करने के लिए मैंने मेटा के एआई से पूछा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो रिस्पॉन्स तो मुझे आ गया। आखिर में एक पैरा ऐड हुआ कि एंड आई एम द ग्रेट एग्जांपल ऑफ एआई एज आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चंस इन अ ह्यूमन लाइक वे। आपकी उस नजर इंटरेस्टिंग। में, यूर एंटरप्रेन्योर, और आपकी नजर में इस, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एआई एज एन अपॉर्चुनिटी वर्सेस अ थ्रेट। अभी हम जाएंगे स्पीकर्स की तरफ, कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको गाइड कीजिए। जैसे भी सैयद साकिब साहब ने भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लोगों को थ्रेट नजर आ रही है। इट्स अ माइंडसेट, हम डर रहे हैं, हम बगैर जाने पूछे हम डर रहे हैं, कि हम जानबूझ के डर रहे हैं कि थ्रेट भी हो सकती है। थैंक यू। देखें, अगर तो कुछ ऐसी सूरत है जिसके मतलब अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्जे कहन पे अड़ना। आईने नौ से डरना, तर्जे कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। इफ वी आर नॉट रेडी टू चेंज, तो फिर तो थ्रेट है, तो वो आपको किसी वक्त भी आपकी जगह ले सकती है। क्योंकि ये जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो एचआर पर्सपेक्टिव में हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हमने ज्वाइन किए हुए हैं कि दोज हु आर ऑन मिड लेवल या इस सतह पे हैं जहां वो अपने प्रोफेशन में एस्टेब्लिश हो रहे हैं। ये उनके लिए हमने वेबिनार डिज़ाइन किया था कि वी इन्फॉर्म देम कि हाउ दे कैन सिक्योर देयर प्रोफेशनल पोजीशन लर्निंग दी AI टूल्स एज वेल। क्योंकि मैं जो रिपोर्ट देख रहा था, जैसे HBR ये कह रहा है अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, कि 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स कुड बी रिप्लेस्ड बाय द AI टूल्स इन कमिंग डेज। ये है पहली हकीकत। सेकंड इज कि अभी ब्रिटिश टेलीकॉम ने हैज प्लान टू कट अप 42% ऑफ इट्स 130,000 एम्प्लॉइज। ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है जो इसकी है। और तीसरी न्यूज़ जो मैं इंटरनेट से देख सका कि 74% ऑफ द ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस have started the process of using AI or they are planning to use. So the professional have to look into their own career कि अगर वो AI की इस पटरी पे नहीं चढ़ेंगे तो वो उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साकिब साहब ने कहा कि ये खुशखबरी भी है कि AI is going to create thousands of jobs, क्योंकि जाहिर है मशीनों को इन डाटा को यूज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ह्यूमन ही दरकार है। बस ये है कि वट एवर द जॉब यू आर इनटू, आपको उसके अंदर अपनी जो कंप्यूटर स्किल्स हैं और AI टूल्स की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बढ़ानी है। अगर आप बढ़ा लेते हैं तो दिस AI इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू।
अदरवाइज जैसे मैंने अल्लामा इकबाल के लफ्ज में कहा, तो वो थ्रेट तो फिर है ही, कि जो भी चेंज होने को तैयार नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो थी एक छोटी सी जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। और बैकग्राउंड ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1950s में ये रिसर्च शुरू हो गई थी कि क्या मशीन कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। तो इस पे 1950 में काम शुरू हुआ, और 1980 और 90 में आके इस पे पेशरफ बहुत ज्यादा हुई, और 2000 अपवर्ड इसमें इनकलाब आ चुका है। क्योंकि आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग और जीपीयू वगैरह चीजें हैं, वो उन्होंने एआई को एक जंप, एक जो क्या है, ये स्काई जंप जो है वो दे दिया है। ये मैं एचआर के हवाले से एज एचआर पर्सन कुछ हकायक अपने दोस्तों के सामने रखे हैं। तो आगे आप प्लीज चलेंगे तो वी विल कंट्रीब्यूट। थैंक यू। और जाफर साहब, सर आपकी तरफ आऊंगा मैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं और रिलेवेंट हैं हमारे टॉपिक से, तो अगर जी जी। प्लीज, जी प्लीज एज प्लीज भाई जी। गुलाम मुस्तफा साहब कहते हैं जी, काइंडली शेयर द रोड मैप फॉर एआई। एट द सेम टाइम जफर साहब ने क्वेश्चन किया कि डस एआई डिपेंड सोरली अपॉन द डेटा फेड ऑन इट। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। पहली कि वो रोड मैप जानना चाह रहे हैं इसका, कि एआई बहुत लोगों के लिए अभी भी नया है, और खास तौर पे बेताशा लोगों को तो एआई की समझ जब आई है, जब व्हाट्सएप में और मैसेंजर्स में जो है ना 3 दिन 4 दिन हफ्ते पहले जो है ना वो एक सर्कल आ गया है और आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत लोगों को नहीं पता अभी भी, इवन प्रोफेशनल लोगों को जिनको। तो सर इसका क्या रोड मैप है, हम क्या देखते हैं, ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, और क्या ये अच्छा, ऐसे ही डिपेंडेंट? जी। जी, एक तो सबसे बड़ा मसला ये है हमारे यहाँ, हम हर काम में बड़ी देर कर देते हैं। वो एक शायर ने कहा ना, देर कर देता हूँ मैं, किसी को मनाना हो, रूठ जाना हो, देर कर देता हूँ मैं। तो जिस तरह हमने साइबर सिक्योरिटी को समझने में मेरा ख्याल है 15 साल लगा दिए, वही कर रहे हैं जो मैं 15 साल पहले कह रहा था। अब मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। यू कांट स्टॉप टाइम एंड टेक्नोलॉजी। इसने आगे जाना ही जाना है। अब ये तय हो चुका है कि दुनिया का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी की, इसकी बुनियाद होगी, वो तमाम का तमाम एआई ड्रिवन होगा। ये अब तय हो चुका है, इसके रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करें और अपने बच्चों को 5वीं जमात से पाइथन पढ़ाएं। हमारे पड़ोसी मुल्कों में ये काम शुरू हो चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। वो जो जाके सीखते हैं ना ग्रेजुएशन के अंदर के जी, वो एआई क्या होती है, वो रॉन्ग टाइम है उनके लिए। उनको 5वीं, और ये काम अभी से शुरू कर दी 5वीं क्लास से, ठीक है जी। उसके बाद मैट्रिक में, एफए में, हमें अपने तमाम बच्चों को तैयार करना है मुस्तकबिल के लिए। हज़रत अली का कौल है कि अपने बच्चों को तैयार करो मुस्तकबिल के लिए। हम तैयार कर रहे हैं माजी के लिए। देख लें, तो कहने का मकसद ने शुरू कर दिया है, लेकिन वो बहुत कम है, मैं समझता हूँ बहुत कम है। अभी इस वक्त जहां मैं चाइना में बैठा हूँ, मैं इसी कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। 3 शहरों के अंदर मैं की नोट स्पीकर हूँ उसके अंदर। अब ये पागल तो नहीं है कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए बुलाया है, बहुत पैसा खर्च किया है। क्यों बुलाया है? बिकॉज दे वांट टू हैव दी, इनके पास बहुत नॉलेज है, हमारे से 100 टाइम्स ज्यादा नॉलेज है इनके पास इन चीजों के ऊपर। लेकिन ये समझते हैं कि जब तक हमें उन लोगों का नॉलेज नहीं पता चलेगा जहां पे हमारी मार्केट है, तो हम क्या कर सकते हैं। हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो जिस रीजन में हम रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, उसमें दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन रहती है। उसमें चाइना भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल है। ये जो बाहर की दुनिया है, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाई है या जेनेटिव एआई बनाई है या एआई के ऊपर सब काम कर लिए हैं, अब नहीं, इन्होंने अपनी चीजें बेचनी है। अब अगर हमने देर कर दी उनकी चीजें समझने के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हम बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे हर हवाले से, ठीक है जी। अभी आगे साहब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। मुझे बताएं कितना बड़ा मसला होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए, कि वो उसको कहता है जो सीईओ कंपनी का, भाई मुझे 5 आदमी चाहिए, लेट्स से आईओटी के ऊपर, हमने को आईओटी डिवाइसेस बनानी है कि, तो कितना अरसा बेचारे को लगता है उसमें। अब जो एआई है वो लिंक्डइन को लिंक कर रही है, वो उसको कहती है जी इन 100 लोगों को आप इनवाइट कर लें इंटरव्यू के लिए। तो आप सोचते हैं कितने रिसोर्सेज बच गए उसके अंदर। ये आपका दोनों सवाल का जवाब, का सवाल जवाब हो गया कि रोड मैप के अंदर अभी तक हमारी कोई एआई की पॉलिसी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पॉलिसी इशू कर दी है कि उस पर कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, क्या किया, वो मुझे, मेरा राब्ता है उनके साथ, बड़ा कम रिस्पॉन्स है। जब तक आप एआई की पॉलिसी ड्राइव नहीं करेंगे, तो जो खतरात की आप बात करें वो अपनी जगह रहेंगे। फिर वही होगा
क्रिप्टो करेंसी की तरह, बजाय इसके कि हम फिनटेक की बात करते हैं या यूज ऑफ जो ब्लॉकचेन फॉर और काम की चीजों की बात करते हैं, हमने उसको गैर कानूनी करार दे दिया और सारा बेड़ा गर्क कर दिया उन सब चीजों का। तो हमें अपने मुल्क को रिफिक्स करना है। और वो तमाम लोग आगे आए हैं जिनके पास तीन चीजें हैं। नंबर एक, डोमेन नॉलेज। नंबर दो, पैशन है। डोमेन नॉलेज और चीज है, बहुत बड़े काबिल पीएचडी डॉक्टर्स पढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके पास एआई पे हमारे से 10 टाइम इंटू है। लेकिन मैं आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में करूंगा, जब तक लोग डेटा को नहीं समझेंगे। डेटा क्या चीज है? डेटा दो चीजों का मतलब है, कंपाउंड है। नंबर एक, स्टैटिस्टिक्स। एग्जैक्टली मैं वर्ड बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा, कंप्यूटर साइंस। अगर आपके पास इन दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी, आप डेटा को समझ नहीं सकते। डेटा जो है वो फ्यूचर ऑयल है। डेटा जो है वो एआई की बुनियाद बन रही है सारी चीजों के लिए। हमें डेटा को छोड़कर अब बिग डेटा की बात करनी है। बिग डेटा क्या है? इट्स ए फ्यूजन। और फ्यूजन से ही पैटर्न निकलते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जेनेटिव एआई की बात कर रहे हैं, या एआई की बुनियाद के ऊपर जो हम प्रोएक्टिव की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो हमारे ऑडियंस हैं वो क्वेश्चन करें यूज केसेस के ऊपर। जैसे मैंने आपको दो मिसालें दी हैं अभी। मैंने सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी की मिसाल दी है और हेल्थ की मिसाल दी है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके ऑडियंस से कि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन करें कि जी इस शोबे में एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा उसका जवाब देना। थैंक यू। ओवर टू यू जी। थैंक यू। साकिब साहब, एक क्वेश्चन है जो बड़ा रेलेवेंट सा है। जफर अहमद साहब कहते हैं जी, आई हैड टू सबमिट माय आंसर्स टू अ क्वेश्चनर फॉर अ कंपनी एंड दे मेंशन्ड इन देयर डिस्क्लेमर दैट यू कांट यूज एआई टूल, स्पेसिफिकली ChatGPT. जी Meanwhile, we are told to so many benefits of using AI. We are advised to learn AI. So, what's the expert opinion on this? आपके वॉइस देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि देखिए, एक बात मैं जफर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि साकिब साहब की तरफ जाऊं। एक बड़ा पुरानी कहावत है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग डिस्करेज करते हैं, मैं पर्सनली भी बहुत कभी कभी डिस्करेज करता हूँ, कि लोग जो जवाब लिख के एआई से पूछते हैं और एआई जो बताता है, एआई भी एआई है ना, मतलब बेसिकली एआई के वर्जन्स है, एक कुछ फ्री वर्जन्स है, कुछ पेड वर्जन्स है। वो जवाब एज ए छाप दिया जाता है, वो बॉदर भी नहीं करते कि उसको पढ़ के जवाब दें। तो फिर कंपनीज जो हैं वो उनको तकलीफ होती है और वो लिखती हैं कि आज चैट जीपीटी यूज ना करें। क्यों? इफ यू आर नॉट एडिंग योर पर्सनल टच, तो फिर आपका पर्सनल आंसर नहीं हो। सर साहब की तरफ मैं इसी सवाल के साथ आता हूँ। और एक और साहब हैं, शुएब साहब ने कहा कि जी, विच टूल्स वी नीड टू नो एंड शुड बी पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। तो ये चैट जीपीटी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ एआई को प्रमोट किया जा रहा है। और शुएब साहब पूछ रहे हैं कि जी, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे डेली रूटीन का पार्ट होने चाहिए? मैं मिक्स इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों रेलिवेंट है आपस में। जी देखिए, मैं आपको ना सबसे पहले जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारा एआई के लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, तो मैं तीन चार चीजें सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ताल्लुक चाहे किसी भी डोमेन से, एटलीस्ट आपको इन तीन चार फील्ड की तीन चार चीजों की नॉलेज होनी चाहिए टू स्टार्ट बिकमिंग और टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जैसे अम्मार जाफरी साहब ने बात की, आपको स्टैटिस्टिक्स की और डाटा की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स की और डाटा की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो C++ हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। थर्ड, मैं एक बात कहूंगा वो ये कि आपको कंप्यूटर साइंसेज की, कंप्यूटर यूजेज वगैरह की, कंप्यूटर्स की आपको एक बेसिक अच्छी एक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये तीन चार चीजें आपके पास हैं, अगर आपको फिर अपनी डोमेन नॉलेज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ही है, अगर आप मेडिकल की डोमेन में हैं या आप HR की डोमेन में या आप अकाउंट्स की डोमेन में, तो आप इट्स वेरी गुड, एक आपका एक अच्छा बैकग्राउंड बन सकता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि हम किस तरीके से देखें, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल उतना ही अच्छा हो सकता है जितना डाटा पे उसको ट्रेन किया जाए। मैं अक्सर ये एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता हूँ जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ कि देखो, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो कि टेररिस्ट को प्रिडिक्ट कर सके, जो टेररिस्ट को डिटेक्ट कर सके, और आप सारा डाटा एक मुस्लिम जो जिन टेररिस्ट के ऊपर आपने डाटा ट्रेन किया वो सारे मुस्लिम टेररिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बाइस्ड होगी। सिमिलरली, जैसे आपने बात की कि लोग
चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं और वो डायरेक्ट हमें आंसर्स दे देता है और हम आंसर्स को कोड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे टूल्स और भी हैं, जैसे कि डेली लाइफ का, जैसे अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो मेरी अपनी डेली लाइफ में ग्रामरली टूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मैं ग्रामरली टूल को यूज करता हूँ अपनी ईमेल्स को बेटर बनाने के लिए, अपनी डेली की जो मेरी क्रिएटिव राइटिंग है, जो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं रिसर्च राइटिंग करता हूँ, उसमें ग्रामरली टूल मेरे बहुत ज्यादा काम आता है। इसके अलावा ऑनलाइन क्विल बोट वगैरह जैसे कि पैराफ्रेजिंग टूल्स, ये बहुत ज्यादा काम के टूल्स हैं। ये ऐसे टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एक आम ऑफिस वर्किंग इंसान की लाइफ का पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि मेरी एक ऑफिस जॉब है। इसी तरीके से ग्रामरली टूल, चैट जीपीटी, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। मैं पहले पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाता था, लेकिन अब मैं बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ कैनवा टूल के ऊपर। और कैनवा इंतहाई इजी टूल है, यूट्यूब के ऊपर आपको इसके ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। इनको इस्तेमाल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की सबसे खूबसूरत बात ये कि ये आम लोगों के लिए बनाए गए हैं ताकि आम लोग इसको इस्तेमाल कर सकें, और इनको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। और जहां तक बात ये कि ठीक है, आई थिंक अब फिर बाकी बातों की तरफ हम बाद में चलते चलते। थैंक यू सर। मार जाफरी साहब, सर एक क्वेश्चन है रफी साहब जी का। जनाब। जी हाउ जनाब। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सपोर्ट सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। मैं क्यों ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए कि एकेडमिया के लोग भी मौजूद हैं और एआई की बहुत बहुत बड़ा, जैसा आपने भी कहा, और बड़ी हम हमेशा चीजें रिलेट कर देते हैं। और इस दफा तो खैर हमें भी, मेरे ख्याल में बैरून मुल्क वाले भी हमें थोड़ा लेट चीजें देते हैं। सोशल सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या एआई उसको सपोर्ट कर सकता है? इसलिए अभी फिर थोड़ा सा हमें मार्जिन दीजिएगा, हमारी ऑडियंस को मार्जिन दीजिएगा। सब एआई से बहुत ज्यादा मुतारिफ नहीं है, तो थोड़ा सा प्लीज, आप बहुत सीनियर है, चलिए, मैं पर थोड़ा सा मैं हमें मैं मार्जिन। सिंपल बात करूंगा। जी जी। मैं आज से कुछ अर्सा पहले कतर में कॉन्फ्रेंस में गया, तो मैं से एक चौक से गुजर रहा था, तो वहां पे एक बैग पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि यार ये बैग इसका उठाओ, और इसको, उसने कहा जी हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, हम पकड़े जाएंगे। मैंने कहा, क्यों भाई? कहना जी जिसका बैग है वो खुद ले जाएगा। मैं कहा भाई कैसे ले जाएगा, उसको पता ही नहीं है मेरा बैग यहाँ पड़ा है, तो जाते गिर गया उसका बैग। ने उसने कहा नहीं, ये हम हाथ लगाएंगे हम पकड़े जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सोशल बिहेवियर डिपेंड करता है हमारी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर। अनलकीली हमारे मुल्क में किसी चीज की पब्लिक पॉलिसी नहीं है। हेल्थ के ऊपर नहीं है, एजुकेशन के ऊपर नहीं है, इवन रूल ऑफ लॉ पे नहीं है, गवर्नेंस के ऊपर नहीं है। बड़ी तकलीफ होती है हमें जब हम बाहर के मुल्कों में फिरते हैं कि वहां पे उन्होंने तो सोशल बिहेवियर ड्राइव करते हैं आपकी पॉलिसी के ऊपर। मुझे बताएं, हमारा बंदा उड़ता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, 2 घंटे बाद लैंड करता है वो दुबई या शारजा के अंदर, क्या वो डस्टबिन के बगैर कोई चीज फेंक सकता है? उसको फौरन पकड़ लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सोशल बिहेवियर के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, और उसके लिए हमें सबको एडवोकेसी करनी चाहिए, और सबको इसके लिए काम करना चाहिए। ये जो हम घर में बैठे रहते हैं ना अपने सोफे पे टेक लगा के, यार गवर्नमेंट करेगी, ऐसा नहीं होता हैगा। हमेशा गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं प्रेशर्स को, गवर्नमेंट्स फॉलो करती हैं थिंकिंग प्रोसेस को। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मैं ये गाइड करना चाहूंगा आपके पार्टिसिपेंट्स को कि एआई जो है ये टूल है, इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पे काम आ जाएगा, लेकिन इसको आप समझ के करेंगे। ये जो मैंने बात की ना स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस की, तो समझने की कोशिश करें। मैं आमतौर पे एक चैलेंज करता हूँ, यहाँ भी कर दूंगा, काफी लोग सुन रहे हैं मुझे, कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने 2 चीजों में मास्टर्स किया हो, स्टैटिस्टिक्स में भी और कंप्यूटर साइंस में भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों में मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है जी। पहला मास्टर मेरे वालिद रूम ने कराया था मुझे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और वो मैंने किया था जब ये जो सुनने वाले हैं इसमें 80% लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं मास्टर्स किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में, 68-70 के बैच के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया अपनी मर्जी से बाद में। तो जब तक इन 2 चीजों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स समझाएगा आपको डाटा के बारे में, मीन, मीडियम, मोड, स्क्यूड कर्व्स और ये सब चीजों के बारे में। कंप्यूटर साइंस सिखाएगा आपको डाटा को एनालाइज करने के बारे में। इनका जब आप फ्यूजन करेंगे तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। और आखिरी बात मैं आपके सवाल के जवाब में ये करूंगा कि हमें एआई के एक्सपर्ट्स पैदा करने हैं, और एआई के एक्सपर्ट सिर्फ ये पीएचडी करने से नहीं होंगे कि एक साहब आया कि जी मैंने एआई में पीएचडी की है। भाई तूने थ्योरी पढ़ी है, उसमें आता आता कुछ भी नहीं है।
ठीक है। हमें एक एक्सपर्ट बनाने हैं अपनी यूथ को, अपनी नई जनरेशन को। उसके लिए हमने अंडर डिजिटल पाकिस्तान काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह मैं 4 को वापस आऊंगा। हम रोज 8 बजे सुबह, रोज 8 बजे रात को वेबिनार्स तो होते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और आप आकिब साहब के साथ मिलकर वेबिनार्स किया करेंगे। तो कहने का मकसद ये है, इस मुल्क को अगर आपने, मैं लफ्ज बड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, बचाना है, अगर बचाना है तो हमें सबसे पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बात करनी पड़ेगी। हमारी गप्पे सुनने को कोई तैयार नहीं है। ओवर टू यू जी। सर एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इसलिए कि ये है कि हाउ कैन वी यूज एआई इफेक्टिवली इन एकेडमिया। मैं साकिब साहब से इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो खुद एकेडमिक उससे ताल्लुक रखते हैं, और आपने जो अभी अच्छा, बात की कि एकेडमिया हमें। एकेडमिया एकेडमिया के बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि मैं खुद नस्ट में पढ़ाता रहा हूँ मास्टर्स लेवल के ऊपर क्रिप्टोग्राफी। एकेडमिया का मसला अब ये हो गया कि एकेडमिया खुद कुछ नहीं करना चाहती। एचईसी ने कहा है जी एफआईपी को हम सपोर्ट करेंगे, वो कहते हैं बच्चों को जाओ भाई एफआईपी ढूंढ लो, हम तुम्हें सपोर्ट कर देंगे। नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकेडमिया से कि प्लीज वो खुद जाएं चैम्बर के प्रेसिडेंट के पास, वो खुद इंडस्ट्रीज में जाएं, उनके प्रॉब्लम लेकर आए। और साथ ही मैंने चेयरमैन से बात की है कि आप एकेडमिया को बिजनेस में इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो जो 4 6 8 महीने का होता है ना एफआईपी, उससे काम नहीं चलता। वो 18 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं। अभी मैं डिनर के ऊपर, एक मीटिंग है मेरी, उनका एजेंडा यही है कि जी पाकिस्तान में को पीएचडी डॉक्टर्स मिलेंगे इन चीजों पे काम करने के लिए। ये लोग फंड करने को तैयार है चीजें, लेकिन ये कब करेंगे, जब हमको काम करेंगे। तो मेरी एकेडमिया को सिर्फ और सिर्फ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज बच्चों पे ना छोड़ें कि जी आप अपना एफआईपी ले हम करवा देंगे। नहीं, आप खुद जाएं और मेहनत करें। और लेकिन साथ ही मैं कहूंगा एकेडेमिया में जो लोग हैं उनको पैसे चाहिए, ठीक है जी, उनका शेयर रखिए उस प्रोडक्ट के अंदर। अमेरिका में स्टैनफोर्ड बर्कले जो है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, वो देती है चाइना को, हमें इसकी प्रोडक्ट बना के दो। तो मैं ये चाहूंगा कि एकेडेमिया आगे आए, चीजों को समझे, और इस तरह के वेबिनार्स के अंदर यूज केसेस बनाए। बहुत बड़ी डिमांड है ज़राअत में एआई की। मेरी ख्वाहिश थी कोई उस पर सवाल करता है मेरे से। इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा फोकस है ज़राअत के ऊपर, और ज़राअत के ऊपर एआई दुनिया में बहुत काम कर रही है। ओवर टू यू, थैंक यू मच। साकिब साहब सर आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर हाउ टू इंटीग्रेट एआई इनटू द प्रेजेंट प्रोफेशन। लोग काम कर रहे हैं, यंग प्रोफेशनल्स भी हैं, सीनियर भी हैं, हम जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं। आया है चीजें, कुछ चीजें तो हमें पता होती हैं कि हम लोग करते हैं, और जैसे डेफिनेटली एक्सप्लोर करते हैं, जिनको थोड़ी आदत होती है एक्सप्लोर करनी उन्हें जल्दी पता चल जाते हैं। अगर हम गाइड करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्रेजेंट प्रोफेशन में, और जैसे अभी आपने कहा कि आप कोई भी प्रोफेशन हो, एआई का एक नया एक स्पेसिफिक रोल मौजूद है, और ओवरऑल आ रहा है एआई इज नॉट ओनली सब्जेक्ट, हमारी हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। इंटीग्रेट करें एआई को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी चीजों में। सर सबसे पहले तो मैं जाफरी साहब की एक बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि वो ऑब्वियसली वो कह रहे थे, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक जनरेशन ट्रेन करनी पड़ेगी अगर हमने दुनिया के साथ चलना है। एकेडेमिया में सर अब बहुत चेंज आ चुका है। एकेडेमिया अब, अगर हम आज से 8 10 या 20 साल पहले की बात करें तो अब यूनिवर्सिटीज और एकेडेमिया ऐसे नहीं रहा। एकेडेमिया बहुत चेंज हो चुका है। अब बहुत सारे प्रोफेसर एकेडेमिया में रहते हुए यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं, फील्ड्स में काम कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स विन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो आ रहा है वो उसमें एकेडेमिया के प्रोफेसर भी शामिल हैं। अब पहले सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम सोशल साइंसेज में किस तरीके से यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है टेक्स्ट समराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बहुत ज्यादा टेक्स्ट है जो कि बहुत ज्यादा पेजेस पे मुहित है, ऑब्वियसली आप वो सारा नहीं पढ़ सकते, तो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उस टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं। फेक न्यूज डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस और बहुत सारी क्रिएटिव राइटिंग, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर करता है सोशल साइंसेज के लिए। अब हम बात करते हैं जेनेरिकली, जैसे आपने पूछा कि हम अपनी जो ऑफिस लाइफ है या जो हम अपनी एक आम प्रोफेशनल लाइफ है, हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एस्पेक्ट के ऊपर आपको टूल्स मौजूद हैं, टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स को ये अलग तरीके से सपोर्ट कर रही है, वर्किंग ऑफिस में जो वर्कर्स है, इवन आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, आपके क्लाइंट्स
सर्च करने के लिए। अगर आप कुछ भी जॉब नहीं करते, आपका एक छोटा सा आप एक प्रोडक्ट्स है जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर सेल परचेज करते हो, तो आपको यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है अपने रिलेटेड कस्टमर्स और क्लाइंट्स सर्च करने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में, चीजों को इम्प्रूव करने में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हर किस्म के टूल्स अवेलेबल है, हर किस्म की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, और रोज आना की बुनियाद पे नई से नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं। बस जरूरत इस बात की है कि क्या हम इस चीज को वाकई ऑप्ट करना चाहते हैं, हम इस चीज को क्या सच में अडॉप्ट करना चाहते भी हैं या नहीं। तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड को वेलकम करती है, हर डोमेन के लिए है, और बहुत ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप सीखने वाले होने चाहिए, आप काम करने वाले होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है आपको। अच्छा अगर आप खुर्रम साहब, मैं इसमें थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि हाउ टू चूज द राइट एआई टूल, और हमारे पास टूल्स अवेलेबल क्या हैं। तो मैं एज ए HR पर्सन इन चीज़ों को जब देखता हूँ, तो हमारे पास 3-4 बेसिक्स आती हैं कि जिसकी बुनियाद पर वन कैन डिसाइड कि मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसमें पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी नीड का पता हो जिस भी रोल में है। मसलन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंदर हैं तो आपको मीटिंग्स शेड्यूल करने की ज़रूरत होती है, उनके मीटिंग के मिनट्स लिखने होते हैं, कुछ लेटर्स आपको टाइप करने होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बनाने होते हैं। तो ये सारे टूल्स MS ऑफिस से लेके और ग्रामरली और बहुत सारे आपको AI के टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ ये कर सकते हैं। अगर आप NGO में या किसी अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तो बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जो सारे AI बेस्ड ही आपको मिलेंगे। तो वहाँ आप अपने आइडिया को कंसीव करने से लेके उसके टास्क, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका प्रोग्राम, उसकी बजटिंग और उसकी टास्क शेड्यूलिंग सारी कर सकते हैं। तो आपको इस बुनियाद पे सोचना होगा। इसी तरह से अगर आप अपने ऑफिस में कोई ऐसा असिस्टेंट रोल में है जहां आपको रिसर्च करनी है, तो डॉक्टर साहब बहुत सारे नाम ले सकते हैं जो रिसर्च के इसमें पूरे पूरे मौजूद हैं। और खुद AI जनरेटिव जो है या ChatGPT वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे आपको अपनी उसमें मदद दे सकते हैं। तो पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके मुताबिक टूल बनेगा। नंबर 2, आपने ये देखना है कि स्केलेबिलिटी, कि मैं एक से ज़्यादा दफ़ा और अपने मुख्तलिफ टास्क के लिए इसको इस्तेमाल कर सकूं। कंपैटिबिलिटी, कि जो आप काम कर रहे हैं आप ऐसी एक नॉवल और क्या कहते हैं एलियन चीज़ ना इस्तेमाल करें कि जो आपको अपने दूसरे लोगों से अलग कर देती है। इजी टू यूज़ होनी चाहिए और कास्ट को आपने देखना है। इसके अलावा एक लिस्ट मुझे मैंने ढूंढी, और नुमान ये ज़रा उसमें डाल दें ये लिस्ट चैट बॉक्स के अंदर। इसमें 30 टूल्स हैं जो हम इसलिए चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कि आप इसे कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास, वहाँ से आपको सहूलत होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि क्लाउड2, ChatGPT और कंटेंट क्रिएशन के लिए, ग्रामर चेकर के लिए, वीडियो, इमेजेस, वॉइस, नॉलेज मैनेजमेंट, टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये कुछ 30 मुख्तलिफ अवेलेबल टूल्स हैं जो आप कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज व्हेन एवर यू लाइक। थैंक यू, ओवर टू यू। एक क्वेश्चन है, उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अमर साहब से करूंगा, बस उससे पहले एक क्वेश्चन का मैं जवाब खुद देना चाह रहा हूँ। मोहम्मद अफजाल साहब, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई रिगार्डिंग परचेजिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड हाउ कॉस्ट रिड्यूसेस द ड्रग यूजिंग एआई टूल्स। अफजाल साहब, एक बात याद रखिएगा कि एआई हर प्रोफेशन को सपोर्ट करता है, बट हम उस प्रोफेशन को रिप्लेस नहीं कर रहे। जो भी हम बात कर रहे थे ना, अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट, अगर हम ये सोचें कि हम दवा खुद प्रेस्क्राइब करने, एक बात याद रखिएगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रिस्क्रिप्शन और उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो कंडीशंस को एआई में डालेंगे तो आपको कोई रिकमेंड करेगा, वो भी उन्हीं की बेसिस पे। तो मेडिकल साइंस को इसको एआई को मेडिकल साइंस के लिए फिलहाल मेडिसिन वालों को यूज करने दें, ताकि इसलिए कि वो फिर वो बात है कि वी कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। हम चैट जीपीटी की जैसे बात की कि हम किस सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट करके इनह्यूमन एलिमेंट नहीं दे सकते। तो मेडिसिन को और सेविंग ड्रग्स परचेज को या उसकी रिप्लेसमेंट को कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकता है? रोबोटिक सर्जरी आ गई है।
रोबोटिक सर्जरी आ गई पाकिस्तान में भी, लाहौर में कॉमन होती जा रही है, कराची में भी आगे होगी, तो डेफिनेटली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं रोबोटिक सर्जरी भी इज अ पार्ट ऑफ एआई, कि उसमें सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये बताते हैं कि रिकवरी टाइम बहुत जल्दी है, टारगेटेड जाते हैं, उनको एफर्ट करनी पड़ती है इसलिए कि वो ऑटोमेटिकली स्कैन के साथ चीजें चल रही होती हैं, बट हमें कैसे यूज करना है, हम इसमें बेहतर है कि हम हर हर प्रोफेशन को उसकी लिबर्टी दें कि वो लेट देम डायग्नोज। मैं डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, जनरल बात करो, बट अगर हम ये सोचें कि लाइफ सेविंग ड्रग हम एआई पे जाके कुछ सिम्टम्स डालें और हमें वो रिकमेंड कर दें, हम यूज कर लें, तो देन आप रिजल्ट के खुद जिम्मेदार होंगे डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से हम इस चीज को डिस्करेज करेंगे। अमर साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, अमर जाफरी साहब, और बड़ा चुभता हुआ क्वेश्चन भी है, और मैं आप जैसे लर्नेड और आप जैसे सीनियर पोजीशन पे वही जवाब देंगे। गुलाम रसूल साहब का क्वेश्चन है, सर इन अदर कंट्रीज एआई गेटिंग मोस्ट एडवांस ईच डे, but in Pakistan, most of us don't even have average knowledge about AI. Now the question is why in Pak, and most of people in Pakistan who are doing different degree programs in different sectors are getting threat from AI and ready to leave their current degree to get started in the field of AI. Now the thing is that I want to know, how can artificial intelligence be effectively integrated into different degree programs such as engineering, healthcare, and business to enhance automation, diagnosis, drug recovery, ड्रग डिस्कवरी, डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जनरल बात जैसे कहा कि पाकिस्तान में चीजें लेट होती हैं, तो ये थोड़ी ज्यादा लेट हो गई, तो ये कंपेयर ये कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी जो एग्जिस्टिंग डिग्री छोड़ो, एआई की तरफ जाओ। क्या है मतलब ये, इसलिए ये बड़ा एक क्वेश्चन, ये उन्होंने अपनी लाउड लाउड थिंकिंग की है, और वी नीड योर गाइडेंस अबाउट दिस कि बहुत क्या शुक्रिया रोल आपका, है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई भी प्रोफेशन अगर एआई को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अपनी चेकलिस्ट बनाए पहले, कि मेरे पेन पॉइंट्स क्या हैं। ये मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ सब लोगों जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने पेन पॉइंट्स लिखें। उसके बाद उस पेन पॉइंट को वन बाय वन सॉल्व करें थ्रू एआई। ठीक है जी। अब उसके लिए चैट जीपीटी से क्वेरी करें, वो फौरन बता देगी आपको, आप ऐसे करें। ठीक है। एनी साहबा जो है वो तशरीफ ले आई हैं कि आप एनी से कोई सवाल करें वो फौरन जवाब देगी आपको। लेकिन एक मेरी सबमिशन आप लोगों से ये होगी, प्लीज उनको डिटो फॉलो ना करें, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं वो चीजें जो उनके माशरे में चलने वाली हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, अगर आपके घर में 5 लोग मेहमान आ रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं इनको क्या खिला पिलाऊंगा। अगर 500 मेहमान आ रहे हैं तो पहला तो सवाल ये है, कहाँ बैठेंगे ये लोग। हमारे प्रॉब्लम बड़े कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपको बड़ी पेनफुल ये बात बता रहा हूँ कि हमारे जो मुतलका इदारे हैं वो नहीं सोचते चीज़ों को इस तरह। लेकिन अब उनका इसका मतलब ये नहीं है, अगर वो नहीं सोचते, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, तो हम भी ये काम करना भूल जाएं। हमें यही काम करना चाहिए कि जो आप जिस तरह वेबिनार्स कर रहे हैं अपनी, और ये एक अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि भाई आप कोई फंक्शन करें, कोई हॉल बुक कराएं, ये करें वो करें। तो मैं ये समझता हूँ कि एआई की एजुकेशन, मैं रिपीट करूंगा, पाइथन सिखाएं 5वीं जमात से अपने बच्चों को, 5वीं जमात से। उसके ऊपर अब स्टेम स्टीम के टूल्स आ गए हैं। बच्चा कभी नहीं सीखेगा अगर आप उन्हें उसको किताबें छाप के दे दी उसको। तो हम ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुके हैं पीके स्टीम के नाम से, क्योंकि स्टेम तक वो आर्ट्स को ही लाए थे, वो स्टीम में आर्ट्स को ले आएंगे। बच्चों को स्कूलों के अंदर बिल्कुल इस तरह पढ़ाएं। मैं आपको पता है कि जापान के अंदर 10 साल की उम्र से पहले बच्चों को किताब पढ़ाना जुर्म है। कहते हैं कि खिलाओ पहले इसको। माजी में भी ये होता था कि वो घर में पढ़ाते थे और वो फिर आगे दाखिला दिलाते थे उसको। पहली बात तो ये है। दूसरे, ये जो स्कूल प्लस और यूनिवर्सिटी प्लस की मैं 10 साल से बात कर रहा हूँ, आगे आपको अच्छी तरह पता है, उसका मकसद ही ये था कि डिग्री देने वाले डिग्री पढ़ करें, क्योंकि हमारे बगैर, हमारे मुल्क में डिग्री के बगैर भी गुजारा नहीं है। इसलिए कि हर आदमी एफआईए में, पुलिस में, सिविल सर्विस में जाना चाहता है, उसकी बुनियादी डिग्री है कि उसकी बुनियाद ये एआई की सर्टिफिकेशन नहीं होगी इसके ऊपर। दूसरी बात, एआई की सर्टिफिकेशन आ चुकी है दुनिया के अंदर अपना। अगर आपने अपने कोर्स शुरू कर दिए तो फिर वही क्या भेड़ चाल चलेगी, और फिर वो कमा कर लोग चाक पैसे कमा के भाग जाएंगे और मसला होगा। हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तो जाना चाहिए इसके ऊपर। अब वो सर्टिफिकेशन आ चुकी हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम का ये मैंडेट नहीं है। लेकिन कहते हैं टू मच इन्फॉर्मेशन इज नो इन्फॉर्मेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने यंग बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, हर चीज को फॉलो ना करें, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आप बुनियादी चीज समझें कि एआई क्या है, इसका रोल क्या है। उसके बाद जो मैंने आपको गाइडेंस दी है स्टैटिस्टिक्स की और
जरूरी नहीं कि स्टैटिस्टिक्स हो, मैथमेटिक्स के लोग भी आ सकते हैं इसके अंदर। एनीबॉडी हु हैज एनालिटिकल माइंड वो इस पे काम कर सकता है। और बेशुमार लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में आपको गाइडेंस देने के लिए, फ्री गाइडेंस देने के लिए। वो कोई पैसा नहीं मांगते आपसे, ठीक है जी। तो आखिरी बात मैं आपके सवाल के जवाब में यही करूंगा कि हमें फौरी तौर पे एक एआई इमरजेंसी लगानी चाहिए मुल्क के अंदर। तमाम स्कूलों को पाबंद करना चाहिए कि वो एआई की एजुकेशन को इंटरग्रेट करें। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाएंगे तो फिर बच्चे पढ़ के मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, और वो जाके वहां पे कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, फिर हम देख रहे होंगे। वो भी करें, यूनिवर्सिटियां अपना काम करें, फेडरल बोर्ड या जो ये सूबाई बोर्ड है एजुकेशन का, ये अपना काम करें। और स्कूल के करिकुलम के अंदर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक इनिशिएटिव है डू इट योर सेल्फ एआई के ऊपर। आप काइंडली गूगल करके देख लें उसको। उसके अंदर वो यही कर रहे हैं कि छोटी छोटी किताबें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, साकिब साहब, मैं आपके पास तरफ आ रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन है इत्तेशाम साहब का कि आई एम रिसर्च स्कॉलर इन एग्रीकल्चर साइंसेज, इज देयर एनी टूल, एआई टूल, टू डिटेक्ट प्लांट डिजीज एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन प्लांट? इत्तेशाम साहब, वैसे आपके लिए बड़ा अच्छा है कि अगर आप एआई से ही क्वेश्चन कर लें तो व्हाट्सएप में, फेसबुक मैसेंजर में भी ये ऑप्शन आ गया है। आप बिलीव करें, आप टाइप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा कैसा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एआई। कल मैं एक कैपेसिटी बिल्डिंग के एक लेक्चर दे रहा था, आप ही के मोहल्ले में आया था। तो स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता वो डिग्री उनकी कंप्लीट होने वाली है। मैंने कहा जी आप इंटर्नशिप्स करें, प्रोजेक्ट्स करें। तो उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट हमें कौन देगा, इसलिए प्रोजेक्ट के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। मैं कहा मैं पेड प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ठेकों की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट जो आप यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स करते हैं, रिसर्च करते हैं, चीजें करते हैं। एआई आ गया, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो थोड़ा इस हवाले से गाइड कर दें। और क्या, इसलिए क्या, जैसे बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि जो भी आपकी फील्ड हो उसमें एआई का कहीं ना कहीं रोल है और उसी को डेवलप करना है। तो क्या ऐसे पाकिस्तान में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो चले स्टूडेंट्स की बात करें, यंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं जो काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, बट अपनी नॉलेज एनहांस करनी है, इस चीज पे बहुत करते हैं। जो हर प्रोफेशनल डिग्री के लिए कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन जरूर होती है। चलें, वो डिग्रीज की रिक्वायरमेंट है और सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, बट क्या एक नॉर्मल यंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहा है वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है किसी इन टूल्स को यूज करके, या क्या किस तरफ उसका फोकस होना चाहिए? तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ इसको मर्ज करके प्लीज रिप्लाई दीजिए। सर आप म्यूट है, आप म्यूट है आप। जी। जी। सर मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि पहली बात ये कि जैसे हमने बात की, पाकिस्तान बिल्कुल पूरी दुनिया से पीछे नहीं है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पाकिस्तान से प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हमारे बाहर मुल्क में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान में आते हैं। और जब अगर हमारे पास यूट्यूब है, ये मैं आपके इस वेबिनार के तवज्जुह से ही बड़ी जिम्मेदारी से ये बात ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ यूट्यूब है तो हमें किसी और चीज को हम गिला कर सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यूट्यूब इज नाउ वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। तो अगर हम कहें कि हमारे पास मटेरियल पढ़ने को नहीं है या हमारे पास गाइडेंस नहीं है तो वो बात तो बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर भी, इवन अनपेड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है कि अगर आप सीखना चाहो। दूसरी बात ये कि अगर हम पेड प्रोजेक्ट्स की भी बात करें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स की भी बात करें और पेड प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो इस टाइम तो अपवर्क्स और लिंक्डइन वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इंसान जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा सा भी समझता है, ख्वाह वो टीचिंग की फील्ड में है, ख्वाह वो किसी भी डोमेन में काम कर रहा है, और वो एक्स्ट्रा या अपनी ऑनलाइन इनकम नहीं कर रहा। इतनी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में इस चीज को लेकर अवेलेबल है, लेकिन ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग इस चीज को एक प्रॉपर टाइम दें, अपने करियर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इन टूल्स को और इन चीजों को, इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें और चीजों को साथ लेकर चलें। तो अगर आप बात करें वर्ल्ड वाइड तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं कि प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, लोग करने वाले लोग कम हैं उनके लिए। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड। और वैसे भी अब इंटरनेट के बाद, लिंक्डइन के बाद, अपवर्क्स के बाद, अब
हम तो एक ग्लोबल मार्केट का पार्ट है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो डजेंट मीन कि आप पाकिस्तान में बैठे हो। जो अपॉर्चुनिटी एक यूएस के रहने वाले को अवेलेबल है, सेम वो भी पाकिस्तान के शहरी को भी वही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर तो इंटरनेट की एक्सेस ही सिर्फ है उसके पास, जो कि आजकल हम सबके पास है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी है। हम किसी भी किस्म से टेक्नोलॉजी वाइज या आर्टिफिशियल या नॉलेज वाइज या रिसोर्सेज वाइज हम किसी भी दुनिया से पीछे हैं। और हम पीछे नहीं हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और साइंटिफिक डोमेन्स में पाकिस्तान के साइंटिस्ट, पाकिस्तान के रिसर्चर्स, पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद आपको ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अपवर्क्स के ऊपर पूरी दुनिया में, फ्रीलांसिंग के ऊपर पाकिस्तान 4th नंबर के ऊपर है। हम 190 कंट्रीज में से चौथे नंबर पे अर्निंग करने वाले कंट्री हैं, रिगार्डिंग के इंडिया, चाइना, यूएस, फ्रांस, इंग्लैंड, इतने बड़े कंट्रीज, इतने डेवलप्ड कंट्रीज और इतनी बड़ी आबादी वाले कंट्रीज के होने के बावजूद हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन। तो अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम एक एक नेगेटिव या एक पुअर पिक्चर ही पाकिस्तान की देखते हैं। हालांकि हर चीज ऐसी नहीं है, लोग बहुत चेंज अवेयरनेस आ रही है और लोग बहुत ज्यादा काम इन चीजों में कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से। आप शायद अगर अपवर्क्स के ट्रेंड देखें तो गुज़श्ता 5 साल में हम शायद 200-300% ऊपर जा चुके हैं फ्रीलांसिंग मनी की वजह से। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जैक्टली जी। प्यासे को जी। कुएं के पास जाना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज जी। मौजूद है, वी हैव टू एक्सप्लोर। बहुत जैसे बहुत पाकिस्तान के बारे में अपॉर्चुनिटी। मशहूर है कि पाकिस्तान में जितने स्कॉलरशिप्स अनयूटिलाइज जाते हैं वो भी एक रिकॉर्ड है। जी। स्कॉलरशिप्स बिल्कुल। आते हैं, लोग अप्लाई नहीं करते। अमर साहब, अमर जाफरी साहब, सर लास्ट क्वेश्चन आपके साथ और उसके आपका मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए। अफीफा साहिबा कहती हैं जी, पाकिस्तान के हिसाब से एनी रिकमेंडेड एआई सर्टिफिकेशन, नॉलेज गेन तो हम कर रहे हैं, चीजें हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, क्या पाकिस्तान में कोई स्ट्रक्चर्ड सर्टिफिकेशंस हैं जिसका फायदा ये होगा कि लोग सीख भी लेंगे और उनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, जर्नल? आप जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, उसमें ऐसा है कि मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, उसका नाम है एआई सेंटर। उसके तहत हम लोग, जरा ये मेरा कैमरा ऑन कर दें, मुझे अच्छा नहीं लगता जबानी कैमरा ऑन है बात सर, करना। आपका आपकी तरफ से होगा, नुमान प्लीज चेक करें। अच्छा नहीं, मैं कर रहा हूँ वो, अब आओ जी, हो ठीक गया है, सर, ठीक है हो जी। गया सर, हो गया, जी जी, अच्छा, ओके। वो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को ब्लाइंड बंदा बात कर रहा जी है। जी जी, अच्छा, बिल्कुल गुजारिश बिल्कुल। ये है कि हमने, हमारा अपना एक एलएमएस है सीआईटी का, उसके तहत हमने इस पे शुरू कर दिया है। सारा शफकत बैठी है अभी, वो सुन रही है, इसके अंदर देख रहा हूँ, शी इज पीएचडी डॉक्टर। उन्होंने एआई के ऊपर कोर्स शुरू कर दिया है। उसके बाद ये 2 कोर्स हम खुद कराएंगे, और ये हम इतने कम पैसे में करवा रहे हैं, गारबन 3,000 रुपये महीने के अंदर, कि जो वो डिटेल जो इंटरेस्टेड होगा उसको मिल जाएंगी। ये जब तक ये बेसिक सर्टिफिकेशन लोग नहीं करेंगे तो अगली बात नहीं समझेंगे। उसके बाद हमने इंटरनेशनल इदारों से बात कर ली है, उसके बाद उनको लेकर आएंगे। लेकिन देखिए, अगर उनको हम लाते हैं और इन्रोलमेंट नहीं होती, पाकिस्तान में पेड ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आप फ्री करते हैं तो उसकी यानी कि उसके इफेक्ट्स कुछ और हैं। लोग कहते हैं ऐसी बेकार चीज है, आप पैसे लेते हैं तो कुछ और चीज है। तो जब तक आप लोग पैसे नहीं खर्च करेंगे इसके ऊपर, तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं आएंगी इसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर हमें सबको मिल के आपस के अंदर एक ऐसे रिजीम को शुरू करना चाहिए। मैं एआई रेवोल्यूशन की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर एआई इमरजेंसी की बात करूंगा। एजुकेशन इमरजेंसी अपनी जगह, लेकिन एआई इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। 5वीं क्लास से बच्चों को ट्रेंड किया जाए, मैट्रिक एफए के अंदर बच्चे छोटे छोटे काम करने के काबिल हो जाएं। उसके उनको 2 फायदे होंगे। एक तो उनकी तालीम का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, उनको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और जो हमने अपने सिस्टम में फॉल्ट लाइंस ले आए थे पिछले 70 सालों के अंदर, उसके अंदर बेहतरी आएगी। और जब ये हमारे एलएमएस के ऊपर सर्टिफिकेशन लोग कर लेंगे, तो हम इसी एलएमएस के ऊपर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के ऊपर, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप देखें तो एनजी कहते हैं वो अपने आप को प्रोफेसर, वो मेरे अपने बेटे की कंपनी है अमेरिका के अंदर, वो एआई पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है उसके साथ। वो सब चीज आ जाएंगी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन चूंकि पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की, इसलिए इदारों को आगे आना पड़ेगा। ये जितने हमारे इदारे हैं, नेफ्टेक है या जो डिजी स्किल्स हैं, सबको मेरा ख्याल है आ रही है, उस तरफ बात चल रही है। मैं जो गवर्नमेंट की सब प्रायोरिटी देख रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अब ये उस तरफ चल पड़े हैं कि हमें अपना, जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है पाकिस्तान के लिए। इसके अंदर हमें सबको मिलके
AI, IoT, वेब 3.0, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इन तमाम जिनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, इन तमाम के ऊपर फ्री अवेयरनेस देनी चाहिए इस तरह के सेशंस के अंदर, और पेड सर्टिफिकेशन पे जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अरशद भाई, आपकी कंक्लूसिव रिमार्क्स के लिए हम आपके जी, पास जाते हैं। और मैं जी 3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। सर। एक तो ये है कि 1 घंटे में बहुत कुछ कहने के बावजूद काफ़ी कुछ रह गया है। उसके लिए एक लिस्ट हमने वेबसाइट की तैयार की है, जो चैट बॉक्स में अभी सामने नज़र आ जाएगी। हमारी ऑडियंस उसको कॉपी पेस्ट कर लें, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो मज़ीद इंफॉर्मेशन खुद अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से हासिल कर सकते हैं। सेकंड बात ये है कि जो आपका अभी जो क्वेश्चन था कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इसमें मैं लिंक करूंगा उस बात से, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से है। सो प्लीज यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन नीड। जिस प्रोफेशन में है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हुई, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, HR प्रोफेशन से हैं, अकाउंटेंसी से आप हैं, तो उनके रेलेवेंट AI के टूल्स अपने अपने हैं। तो आपको उसको देख के फैसला करना है। और उसके बाद गूगल के फ्री कोर्सेज मौजूद हैं, लिंक्डइन पे फ्री कोर्सेज मौजूद हैं, और बहुत ज्यादा यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं। इस वक्त टाइम ये वाला अमाउंट लिस्ट देता कि आप उनका कोर्स फ्री कर सकते हैं, और अगर आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो वो आपसे $15 या $20 लेते हैं। अदरवाइज आप पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन उनको फ्री पढ़ सकते हैं, और सर्टिफिकेशन अगर आपको $15-20 में मिल जाए किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी की, तो और आपको क्या चाहिए। तो एक तो ये बात थी कि ये आपको जानना है। सेकंड, आप जो ऑनलाइन मुख्तलिफ कम्युनिटीज बनी हैं AI के हवाले से, उनमें किसी का हिस्सा बन जाए, वहां से आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाता है, और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आखिरी बात वो ये था कि हमने जो अपने टॉपिक के अंदर कहा है कि न्यू एडिशन इन सी, आप CV में इसको कैसे प्रेजेंट करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको एक स्किल्स सेक्शन के अंदर टेक्निकल स्किल्स का सेक्शन बनाइए, और उसमें जो टूल आप इस्तेमाल करते हैं, जिसपे आपको हैंड्स ऑन है, उसको आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सेकंड, जैसे हमने अर्ज किया कि फ्री ऑनलाइन AI के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कीजिए, और सर्टिफिकेशन में उसका आप जिक्र कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि इन टूल्स को इस्तेमाल करके जो टास्क परफॉर्म किए, जो रिजल्ट मिले, उन्हें अपनी अचीवमेंट में आप जाहिर कर सकते हैं AI के हवाले से। और आखिरी बात इसमें यह है कि जब किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करें, तो उनके कीवर्ड्स को देखते हुए उससे मुतल्लिका AI के जो कीवर्ड्स हैं वो उसमें आना चाहिए, क्योंकि वहां भी कोई AI टूल ही उसको शॉर्टलिस्ट कर रहा होता है, तो दे विल गो फॉर ओनली दोज कीवर्ड्स और जारगान के लिए था। तो ये इस पे हमारी ऑडियंस अमल करें, तो आई थिंक दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस वेबिनार। आई एम रियली थैंकफुल ऑल द स्पीकर्स कि उन्होंने बहुत कीमती बातें की हैं, और आई होप जो हमारी अटेंडेंस है वो 100+ तक गई है, और आखिर वक्त हमारी इस वक्त भी 87 है, अदरवाइज एक लम्हा पहले तक 92 थे। तो थैंक यू एवरीबॉडी, इट इज वेरी लविंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।